बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 4 चैप्टर 7। आज की चैप्टर का नाम है ट्रू एंकर अर्जुना। आज हम अर्जुन की कहानी पढ़ेंगे। The famous Guru Dronacharya was with his royal disciples one morning. He took them to a dense forest. On reaching the forest, Guru Dronacharya said, "I have been teaching you the art of archery for the past few months. I want to test your skills today." तो एक बार की बात है, एक गुरु द्रोणाचार्य थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो उनमें से जब वो गुरु द्रोणाचार्य एक दिन कहते हैं, मैंने तुम सबको बहुत अच्छे से धनुष चलाना सिखाया है, आज मैं तुम सबका टेस्ट लेना चाहता हूँ कि तुम सबने क्या सीखा है। Then he indicated towards the tree and said, "I have hung a beautiful wooden bird on the mango tree. The one who hit the eye of the bird is my true disciple." Hearing the statement of the Guru, all the royal disciples got extremely worried. अब जो गुरु द्रोणाचार्य वो कहते हैं, मैंने इस आम के पेड़ पे एक मछली लगाई है, एक फिश लगाई है, जिसने भी फिश की आंखों पे निशाना दागा वो ही मेरा सबसे अच्छा शिष्य होगा। ये बात सुन के जो उनके बाकी सारे शिष्य थे वो सब सोच में पड़ गए और वो सब बड़े परेशान से हो गए कि कैसे करेंगे वो। It was really a very tough competition. The Guru asked every one of them to take his position with his bow and arrow indicating to the wooden bird. Now he asked Guru Dronacharya, Duryodhan, the eldest of Kauravas, what do you see, Duryodhan? अब जो गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया, जो सबसे बड़ा था सारे कौरवों में, और उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। Guruji, I see the green leaves, the branches of the tree, the sun rays falling on them. I see the bird too, its feather, legs, beak. Replied the दुर्योधन। जो दुर्योधन है वो जवाब देता है कि गुरुजी मुझे सामने पेड़ दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, मछली भी दिख रही है, मछली की आंख भी दिख रही है, मछली की फेदर्स दिख रहे हैं, लेग्स दिख रहे हैं, बीक दिख रही है। Guru Dronacharya smiled and said, "You cannot hit the eye of the bird. You see a lot of things now. You go." तो गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन से कहते हैं, यानी तुम मछली की भी आंख पे निशाना नहीं दाग सकते क्योंकि तुम्हें बहुत ही सारी चीजें दिख रही हैं। After this, the Guru turned towards the eldest of the Pandava, Yudhishthir, and asked him, "What do you see, my dear?" अब वो पांडवों में जो सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर होता है, वो अब उससे पूछे कि तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। At this, the wise eldest Pandava replied, "I see the tree, its thick branch, the curry and the thick branches, the green leaves and the wooden bird." मुझे सामने पेड़ की हरियाली और लकड़ी की चिड़िया दिख रही है गुरुजी। I see it has a prominent eye and a prominent beak. The Guru answered very sadly, "You too cannot hit the bird eye." तो कहते कि मुझे चिड़िया भी दिख रही है, चिड़िया की आंख भी दिख रही है। तो गुरुजी कहते तुम भी चिड़िया अपने निशाने में साध सकते क्योंकि तुम्हें भी बहुत कुछ दिख रहा है। Like this, one by one, the Guru called all of the disciples and repeatedly asked every one of the same question. All of the students gave the answer such a manner which could not satisfy the Guru. अब गुरुजी ने धीरे धीरे करके सारे कौरवों और पांडवों को बुलाया, सभी के किसी के भी जवाब को गुरुजी को सेटिस्फाई नहीं करा। अब आगे हम पढ़ते हैं। Then he turned towards his dearest disciple Arjuna, who was the third Pandava brother, and instructed him to come forward. He then asked the same question that he had asked the others. He replied, तो अब गुरुजी ने अपने सबसे फेवरेट शिष्य को बुलाया और उससे कहा, अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें आगे क्या दिख रहा है? He replied, "Guruji, I fail to say anything else but only and only the eye of the bird." Listening to this, Guru Dronacharya became very happy. तो अर्जुन कहता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है चिड़िया की आंख के अलावा। तो ये सुन के जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो खुश हो जाते हैं। He saw at Arjuna said, "They shoot my dear son. You will definitely hit the bird's eye." तो वो उससे कहते हैं तुम ही इसको तीर से मारो क्योंकि एक तुम ही हो जो इसको निशाना साध सकते हो। Arjuna aimed at the instructions perfectly at the bird's eye and shot the arrow successfully. The bird fell down with a thud. Arjuna bent down and humbly and touched his great Guru's feet. अब अर्जुन ने क्या करा? अर्जुन ने निशाना साधा और चिड़िया की आंख पे निशाना लगा। निशाना लगते ही जो चिड़िया वो नीचे गिर जाती है और जो अर्जुन अपने गुरुजी के चरण स्पर्श करता है इन द एंड।
The Guru then addressed all the students as Arjuna is undoubtedly the best anchor. He fully knows that a good anchor sees only a great target, nothing else. तो वो सबसे कहते हैं जो अर्जुन है वो मेरा सबसे अच्छा शिष्य है, क्योंकि किसी में भी निशाना साधने के लिए तुम्हें सिर्फ वो टारगेट दिखना चाहिए, टारगेट के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो आज हमने इससे क्या थॉट्स है बच्चों हमारे? Channelization of concentration is one direction wins have the toughest target. अगर हमारी जिंदगी में टफ से टफ टारगेट भी है, लेकिन अगर हमारा जो ध्यान है, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो एक जगह रहेगा तो हमें उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। A good anchor sees only his target, nothing else. अगर कोई अच्छा निशानेबाज हो तो उसे सिर्फ अपना निशाना दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। We should be focused towards our target. हमें हमारी जो नजर है वो हमेशा अपने टारगेट पर होनी चाहिए। One who concentrates on hurdles that loses, but one who concentrates on target that wins. अगर तुम्हारा जिंदगी में बाकी सब चीजों पे ध्यान है, टारगेट के अलावा तुम जिंदगी में हमेशा हारोगे, लेकिन अगर तुम्हारा जो ध्यान है वो सिर्फ एक टारगेट पर है तो जिंदगी में हमेशा जीतोगे। अब हमें क्या याद रखना है बच्चों? We should be focused towards a goal. We should concentrate toward target and nothing else. हमें हमेशा अपने गोल पे, यानी जो हमारा को अचीव करना है जिंदगी में, उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारी नजर हमेशा टारगेट पे होना चाहिए, तभी हमें जिंदगी में सक्सेस मिलेगी। अब अगली क्लास हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।